Siddhi, I'm going to take the opportunity to say two things, if I might. Sure. I think I can speak on behalf of most of the people out here. This is my first experience with you. I have not found a teacher who's as patient, as calm, as composed as you are. You might be younger than me in terms of age. I guess in a bunch of all of us, you are amongst the younger ones. But you have taught me how to be a person in the occult space. You've taught me that this is the way I want to be. If I want to pursue this line of in as a career or as a way of being, I want to be somebody like you. So thank you for being a role model, for living and walking the talk, living the talk and walking the talk. The other thing that I want to say to you is you are a giver, and a giver with, who doesn't hold back at all. It's rare to find teachers like this. Because I have been a spiritual shopper. I like to use that word because I've gone around. I've interacted with a lot of teachers, mentors in the occult space, but I haven't found anyone like you for two reasons. One is you're giving. You give openly. You give with a good heart, and you have a good heart. Other people, what I found in this space, sadly, is there is a money faction that's going on. They'll give you something, they'll, give you at the top level. And if you want to learn more, they want you to come back for their next level course or whatever. Here, you're the other way around. You've given us an extra day where, normal teachers would have charged us for the extra day, charged us and made us come into the next level course. You, in the 5 days, in the 4 days, have given us a 5th day. So you're the other way around. So this is the kind of person I would like to be. This is a person I'd like to be like you, who actually believes in doing seva. And lastly, I think I found my mentor, my, soulmate mentor in you. So thank you. Thank you very much. Hi Siddhi. Siddhi, the Kali Dice Divination workshop was a mind opener. It was so beautiful. I never thought I could learn it. I'm not good with numbers, and I thought ki calculation bahut hoga, but it's so simple, so easy. You make it really beautiful. You really make it very simple. And I really appreciate your patience with all of us. You make us understand each and every little questions that we have, clear our doubts. And it is so easy to predict. You teach us with 1 die or maybe 3 die, 5 die, 11 dies. And it's so easy to predict with it. You know where you should understand. You should know about career, about relationships, about business issues. What is it you're not focusing on? What is it you're paying extra attention and you should pay attention over here? So it's really a wonderful tool to work with. I appreciate your learnings, your teachings, and you have such wonderful, so many different modalities which you teach, and I have been a part of many of them. I'm grateful to Corona for introducing me to you, for my guides and masters and the universe, to connecting me with beautiful souls like you. And the Kali Dice Divination workshop is really a mind opener. It's a beautiful tool to work with. I feel everybody should learn it. It's like literally पासा पलट जाता है. जब आप ध्यान देते हो, every day if you take out a reading for yourself, just a die or 3 dice. It's so simple to know कि ये week में हमको कहाँ focus करना चाहिए. You get your answers with relationships, with on work issues, what you should be doing, what are you not following, the guidance you should follow. And Siddhi, you make it really easy to follow. Thank you so much for coming into my life. I'm really grateful to you. Thank you for your patience, understandings and your teachings. They are really marvelous, really wonderful. Thank you, dragons, which
are really another level of learnings also. And I have had wonderful results with your transmissions, with your healings, and your workshops. So I am on a path of learning, and thank you so much, Siddhi. God bless you. Thank you, thank you, thank you so much. Hello everyone. Thank you, Siddhi, for teaching us another beautiful technique to connect with Ma Mahakali, in addition to so many others that we have learned from you. This, I think, is by far the simplest and the easiest that I have come across so far. I've been using this modality for more than 2 months now, and I've done hundreds of readings for clients with the help of the dice. It never fails to amaze me how every time we get new guidances, new answers, and how well they connect with the situation of the client. It's really amazing. Thank you so much. Thank you. क्या होता है, हमारे जो लिप्स होते हैं, ये लिप्स हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं. Okay. सारे फेस के फीचर्स बताते हैं. इनफैक्ट आप Good evening and namaste to all of you. Namaste and welcome in to this beautiful space. Let me quickly look at all of you. Abir ji, Arunav ji, Barsha ji, Balvinder ji, Chia ji, Vandana ji, Jigna ji, Idan ji, Joy ji, Minakshi ji, Nidhi ji, Poonam ji, Pallavi ji, Namrata ji, Niharika ji, Shivani ji, SK ji, Vijay ji, Vijaya ji, and all in between. I could not take all the names, but welcoming all of you with a very warm heart. तो आज का ये काली डाइस डिविनेशन नॉलेज कॉल जो है, इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि हम सब समझ पाए. वी ऑल टेक नॉलेज ऑफ हाउ वी वर्क विद डाइस and how we divine with dice and take it back. So my aim today is to give you something that you can take back and begin reading with. ऐसी चीज आज आप लर्न करके जाओगे कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल डाई के साथ आप अपनी रीडिंग्स शुरू कर सकते हो. अपने लाइफ की, औरों की, एक्सेट्रा धीरे धीरे बढ़ेंगे. सो आज जो लर्निंग है उससे आप अपने लाइफ की रीडिंग शुरू कर पाओगे. इजंट दैट फैंटास्टिक? यस. आप में से जितने लोग, आई कैन सी सम नोन फेसेस, आई कैन सी सम न्यू फेसेस ओवर हियर. जितने लोग यहाँ पे कंप्लीटली न्यू हैं, please type in the chat window I'm new, or just simply say new, so that I know, okay, I have so many people who are completely new joining me for the first time. And to all of you, I welcome with my warm heart. चलिए, तो आप सबके लिए शुरू करेंगे आज का ये नॉलेज कॉल. This will also give me an opportunity to introduce myself to some people who are completely new. Just give me one moment. हम शुरू करेंगे with our work. So सबसे पहले, कितने लोगों के लिए डाइस डिविनेशन एक कंप्लीटली नया टॉपिक है? Just type me in the chat window. Just say me. Okay. कभी सुना था, सोचा था कि डाइस डिविनेशन भी करा जा सकता है, किया जा सकता है, right? This is one of the ancient techniques that people used to follow, a lot of readers used to follow, and we've been fortunate कि हमारे पास ये टेक्निक्स आई हुई है. ठीक है. सो विदाउट फर्दर अडू, एक चीज हम करेंगे अभी के अभी. पैराशूट्स देखे हम सब ने, पैराशूट्स, है ना? जब हवा आती है उसमें जब भरते हैं, दे गो अप. तो हमारे माइंड को बिल्कुल पैराशूट जैसा बनाएंगे. क्यों? क्योंकि पैराशूट और माइंड तभी वर्क करते हैं जब वो खुले खुले होते हैं. तो माइंड को खोलेंगे पैराशूट की तरह और ऊपर उड़ेंगे. सबसे पहले आज का ये जो नॉलेज कॉल है ना, वो उन लोगों के लिए है जो नॉलेज हंग्री है, जो एक्शन टेकर्स है, जो आज सीखेंगे और सीखने के तुरंत बाद अप्लाई भी करेंगे. सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, मेरे टीम के पास फिर से आएंगे अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए है.
आज का ये कॉल उनके लिए नहीं है, बस हाँ भाई मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए था, हम आ गए, हम बैठ गए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। ये उन्हीं के लिए है जो बैठ के एक्शन लेंगे, जो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी में कुछ आगे बढ़ाना है, अपने रीडिंग प्रैक्टिस में कुछ आगे करना है, अपने हीलिंग के करियर के साथ कुछ जोड़ना है, या तो सिंपली अपने लाइफ में कोई चीजों को आगे बढ़ाना है, तो ये कॉल आपके लिए है। अगर आप एक नेचुरल रीडर हो, आपके अंदर इंट्यूशंस बार बार आते रहते कि भाई ये सही नहीं होने वाला है या वो सही होने वाला है, चलो ये करते हैं, तो आपके इंट्यूशन को एक चैनल, एक डायरेक्शन देने का वक्त आ गया है। दिस इज नॉट द कॉल फॉर यू इफ यू आर टू कंटेंट इन लाइफ। आपको लगता है कि हम क्या ही कर लेंगे, सब कुछ कोई और ही कर रहा है, वी जस्ट वांट क्विक फिक्सेस, हमें कोई चीज में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई चीज में टाइम देने में इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेट्रा, वी जस्ट कम हियर टू जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। तो आज का कॉल आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। बट जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, पैट योर बैक, पैट योर बैक, बिकॉज आज आपने ऐसी चीज करी है जो हर इंसान नहीं कर पाता। आज आपने अपने लिए वक्त निकाला है, अपने नॉलेज के लिए वक्त निकाला है। आप सब वर्क करते हो, आप सब अपने करियर में व्यस्त हो, बिजी हो, फिर भी you found out the time to come here, to learn more, to spend this time with me, and choose to upgrade, choose to know something more. तो इसीलिए मैं आपको अक्नॉलेज करना चाहती हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ फॉर टेकिंग एंड फाइंडिंग दिस टाइम आउट। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग टू बी विथ मी राइट हियर। तो सबसे पहले आज के कॉल से अगर बेस्ट चीजें चाहिए, यू वांट टू टेक समथिंग अवे, मेक नोट्स। सेकंड, बी इंटरैक्टिव। जितना आप लेकर जाना पसंद करोगे, उतना आप इंटरैक्शन करोगे। आई एम हियर टू गिव, यू आर हियर टू टेक, यू शुड नो हाउ टू टेक फ्रॉम मी, एंड आई विल गिव यू मोर एंड मोर। मैं आपको देते रहूंगी। स्टे टिल द एंड, एंड में बहुत सारे बोनसेस देने वाले हैं हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स, वी आर गोइंग टू बी हैविंग फन इन दिस क्लास। ये वो नॉलेज कॉल नहीं है जो थोड़े से सीरियस टॉपिक्स में जाते हैं, वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, या कई बार करते 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 हम गुम हो जाते हैं। दिस इज द नॉलेज कॉल वेर यू आर गोइंग टू बी लर्निंग एंड वेन यू वेर यू आर गोइंग टू बी एक्साइटेड, बिकॉज इसमें दो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। वन इज महाकाली माँ, काली माँ, एंड सेकंड इज जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे डाइस। आप में से जितने लोग आज ही अपने घर से कोई गेमिंग बोर्ड से डाई ढूंढ के लेकर आना चाहता है, कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको सीरियसली करना चाहते हो, रीडिंग के लिए करना चाहते हो, आप अपने नजदीकी स्टोर से एक डाई खरीद के लाओगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे डिविनेशन विथ ओनली वन डाई, divination with only one die. But before that, I want to ask you all कि divination क्या होता है। ठीक है, हम उस तरफ बढ़ेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो कि डिविनेशन क्या होगा या हो सकता है। और आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे, सो ये चक्रा स्टोन वाला मैं आपको नहीं सिखाने वाली हूँ आज, कैसे आप एक डाई को लेकर, सिर्फ और सिर्फ एक डाई को लेकर अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू कर सकते हो। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। ठीक है, a lot of you, so many of you are completely new, so I'd like to introduce myself to you. My name is Siddhi Shah. I'm a divination expert, spiritual energy activation coach, and a TEDx speaker. मैंने पिछले कई साल इन्वेस्ट करे हैं टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट स्पिरिचुअल डीप इंसाइट्स, और वही इंसाइट्स को मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ।
लोगों को सिखाती हूँ। और ये करते 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 मैं मास्टर ऑफ मोर देन 100 हीलिंग कोर्सेज बन गई। चाहे आप रेकी कहो, लामा फेरा कहो, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहो, न्यूमरोलॉजी कहो, मैग्निफाइड हीलिंग कहो, इन सब की मैं मास्टर हूँ एंड लॉट मोर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्किंग with angels, dragons, unicorns, goddesses. What do I mean? With multi-dimensional beings. अलग अलग बीइंग से काम करना, उनके गाइडेंस से आगे बढ़ना और उनके गाइडेंस से अपनी लाइफ को संवारना। दैट इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स। एंड यही चीज ने हेल्प करा है मुझे टू टू सर्व, टू हेल्प, टू गाइड मोर देन 11,000 पीपल with my readings, with my healings and my teachings. तो मेरी डिविनेशन स्टोरी भी कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी। जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी, आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज एट वन पॉइंट इन टाइम कि अब मैं आगे क्या करूं। कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को बदलना था। मुझे अपने कॉर्पोरेट लाइफ से तो बहुत प्यार था, बट समवेयर आई यूज्ड टू, माई सोल स्टार्टेड आस्किंग कि तुम क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारे लिए लाइफ बनी है, क्या तुम्हें यही करना है। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई सोल। उस मोमेंट पे आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट रीडर्स। उनको पूछने लग गई मैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बस वही सवाल और नए सवाल उभर के आते थे। और आई यूज टू गेट वेरी hassled because I wanted answers. I wanted accurate answers. I wanted instant answers. And I wanted answers. That's when a friend of mine got in touch with me. She said, Siddhi, you already connect with angels. तुम ऑलरेडी एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रही हो। नाउ यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विथ एंजल्स फॉर योर रीडिंग्स एज वेल। तो उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिए एंजल कार्ड्स। शी मेड मी सिट राइट देयर एंड शी टॉट मी हाउ टू डू एंजल कार्ड रीडिंग। मैं सीखती गई, मैं सीखती गई। मैंने पूरा नॉलेज जो वो मुझे दे रहे थे उसे अब्सॉर्ब किया। आई केप्ट इट ऑल इनसाइड ऑफ मी। एंड आने वाले दिनों में मेरी लाइफ पलट गई। मेरी लाइफ इस तरीके से पलटी कि आई स्टार्टेड रीडिंग नॉट ओनली फॉर मी, वेरी सून आई स्टार्टेड रीडिंग फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर अदर्स। सो मेनी पीपल स्टार्टेड जस्ट कमिंग इन। जब उन्हें पता चला कि सिद्धि ने कहा था ये टाइमलाइन में ये होगा, हो गया। सिद्धि ने कहा था वो टाइमलाइन में ये हो जाएगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें होने लग गई। और जब ये एक्यूरेसी आने लग गई, आई स्टार्टेड गेटिंग रिकग्नाइज्ड। और मुझे अलग अलग प्लेसेस पे फीचर्स मिले। आई गॉट फीचर्ड ऑन टेडेक्स, आई गॉट फीचर्ड ऑन क्रेडेंट टीवी, साधना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद मैं और भी मोटिवेटेड बनती रही कि अब मैं लोगों को और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। सो इसी जर्नी में एक मोटिवेशन मेरा था कि मुझे जो मिला है ना, वो मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखूं। मैं इस लर्निंग को सबके लिए फैलाते रहूं, ताकि जिस तरीके से आई एम बीइंग एबल टू हेल्प अदर्स, जैसे मैं अपने घर का पिलर हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स का, अपने स्टूडेंट्स का पिलर हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग अपने घर के, अपने फैमिली के, अपने सराउंडिंग के पिलर्स बन सकते हैं। एंड व्हेन वी विल एम्पावर our community, our surrounding, imagine where will our country and where will our world reach. तो यही छोटे से थॉट के साथ, यही छोटे से कंट्रीब्यूशन के साथ आई स्टार्टेड। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई केम अक्रॉस इज डाइज डिविनेशन। बस डाई को लो और उसके साथ करो डिवाइनिंग। इनको हमने हमेशा हमारी गेमिंग में देखा है, बट क्या हम इनसे डिवाइनिंग कर सकते हैं? देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री। सिर्फ डाइस से भी डिविनेशन होती थी। इनफैक्ट शकुनी भी करते थे, जिन्होंने अपने पापा के बोन से डाइस बनाए थे। मोक्ष पट में भी डाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हैं मोक्ष पट रीडिंग होती है? इट्स लाइक अ बोर्ड, लाइक सांप सीढ़ी। और उससे जब हम रीडिंग करते हैं, उसमें भी एक डाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड वी कीप
checking step after step after step. तो सवाल ये है कि डिविनेशन होता क्या है। सबसे पहले डिविनेशन इज अ प्रोसेस जहां आप डिवाइनिंग करते हो। डिवाइनिंग यानी कनेक्टिंग विद द डिवाइन एंड ब्रिंगिंग इन आंसर्स। डिविनेशन यानी डिवाइन से आंसर्स खींच के लाना, प्यार से खींच के लाना, हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। सो what is required for divination? For divination we need a divine being that is going to be helping us with the answers. एक divine being के साथ connect होना जरूरी है। Here it is going to be goddess माँ काली। Second is you being in that channel. आपको उस डिवाइन प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए एक स्पिरिचुअल चैनल एक्टिवेट करनी होती है अपने अंदर, एंड आई विल टीच यू दैट प्रोसेस। एंड थर्ड is a tool that you will use for divining purpose. तो वो टूल क्या होता है? That tool can be your tarot card, that tool can be your pendulum, that tool can be your crystal ball that you're gazing into, that tool can be your rune, and that tool can be your die or dice. जब एक है die कहेंगे, मल्टीपल है हम कहेंगे dice. क्लियर? अब ये समय आ चुका है when you pick up your book, your pens. उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वॉन्ट यू टू नो कि काली माँ एक वो एनर्जी है जो डार्कनेस के एज पे आपकी राह देख रही होती है। शी नोज वॉट इज हैपनिंग इनसाइड द डार्कनेस, शी नोज वॉट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू। तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करने में सेकंड भी नहीं लगाती, एक सेकंड भी नहीं लगाती। व्हेन वी चैनलाइज हर एनर्जी शी डिटैचेस अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो कौन सी चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए? जब हम रीडिंग करते हैं तब हम स्पॉन्ज नहीं बनते कि लोगों के दुख चलो ऑब्जॉर्व करें। जब हम रीडिंग बनते हैं, रीडर करते सॉरी रीडर बनते हैं और रीडिंग करते हैं, तब हम मिरर्स बनते हैं कि हम रिफ्लेक्ट करवा पाए लोगों को कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, लुक एट दिस, यू नीड टू फिगर दिस आउट। जब हम रीडिंग करते हैं तब हम लोगों को जज नहीं करते, हाय क्या हो गया लाइफ में। हम रीडिंग करते हैं तब हम न्यूट्रल बनते हैं, नो जजमेंट, नो बायस। तब हम एक अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। जब हम रीडिंग करते हैं तब हम हमारे डर, हमारे डाउट्स, कौन सा डर, कैसा डर, क्या मैंने गलत आंसर दे दिया तो, क्या मुझे आंसर नहीं मिला तो, क्या मैं भी ये कर सकती हूँ, इन सबसे दूर होते हैं। और हम सबको दूर से करने वाली माँ जो है वो है महाकाली। तो किसी भी रीडिंग को शुरू करने के पहले वी आर गोइंग टू बी, किसी भी, आप कोई और रीडिंग में भी यूज कर सकते हो, बट डाइस रीडिंग जो हमारी कर रहे हैं हम या करने वाले हैं, उसको शुरू करने के पहले हम हमारे डाई को हाथ में लेंगे एंड वी आर गोइंग टू बी चैंटिंग द मंत्रा क्रीम, KREEM, क्रीम। अब ये वो मंत्र है जो हमारे अंदर माँ काली की एनर्जी को लेकर आता है। ये वो मंत्र है जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आगे बढ़ाता है। ये वो मंत्र भी है जो हमें एक इंसाइट देगा व्हेन वी आर गोइंग टू बी रीडिंग, और हमारे डाई को एनर्जाइज करेगा। तो हमें किस प्रकार का डाई चाहिए? इसे कहते हैं 6 फेस्ड डाई। ये सबने देखा होगा, सबने इसके साथ कभी ना कभी खेला होगा। इसके 6 फेसेस होते हैं, यस आई सी योर डाई। इसके 6 फेसेस होते हैं। हम इस टाइप का डाई यूज करेंगे।
अब कितनों के माइंड में ये सवाल चल रहा है, अरे मेरा डाई तो वुडन डाई है, मेरा डाई तो प्लास्टिक का डाई है, रेजिन का डाई है, फाइबर का डाई है, क्या मैं इसे एनर्जाइज करके रीडिंग कर सकती हूँ? विल इट बी यूजफुल? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। यू डोंट नीड दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू जस्ट नीड दिस। तो सबसे पहले प्रोसेस लिखेंगे कि आपका डाई ना क्लेंस्ड होना चाहिए। तो एक पाउच में आप अपने डाई के साथ एक कैम्फर टैबलेट रख सकते हैं, कपूर की गोली रख सकते हैं, ताकि वो हमेशा क्लेंस्ड रहे, हमेशा अच्छे कंडीशन में रहे। ये डाई जब आप रीडिंग के लिए यूज करेंगे तो ऐसा डाई लेंगे जो आपने पहले गेमिंग में इस्तेमाल नहीं करा हो और आगे चलकर गेमिंग में इस्तेमाल ना करे। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होना चाहिए। अब रीडिंग करने के लिए कुछ बिछाना जरूरी है। एक नया रुमाल हो सकता है, इट कैन बी अ स्कार्फ, इट कैन बी अ दुपट्टा, इट कैन बी समथिंग दैट इज नॉट यूज्ड बिफोर। अगर आप टैरो करते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं, रून्स रीडिंग करते हैं, इट कैन बी द सेम क्लॉथ यू आर गोइंग टू बी यूजिंग हियर। तो आपको कोई नई चीज की जरूरत नहीं है। Those of you who like lighting diyas, you can light a diya for goddess Mahakali. आपके ऑल्टर पे वो दिया आप लगा सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, इट्स नॉट सेफ फॉर यू, एब्सोल्युटली फाइन, ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है। जब आप अपनी रीडिंग करोगे, अपने पैरों को रखोगे जमीन पे, ताकि आपकी ग्राउंडिंग होती रहे। सो दीज आर सम ऑफ द नेसेसरी स्टेप्स। अब रीडिंग शुरू करने के पहले भी ना आपकी जो स्पेस है, क्लीन इट। इंसेंस लगा सकते हो, धूप बत्ती लगा सकते हो, साउंड टूल्स यूज कर सकते हो। यू कैन हैव योर साउंड बोल, यू कैन हैव योर टिंशा सिंबल्स, ओके। एंड इफ नथिंग, यू कैन चैंट। कौन सा चैंट करोगे? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब सबसे आसान काम, आप अपने हाथ में आपका डाई रखोगे या दोनों हाथ में घुमाते रहोगे। और जब आप उसे घुमा रहे हो, व्हेन यू आर रोलिंग योर डाई विद इन बिटवीन योर palms, यू आर आस्किंग योर क्वेश्चन टू द डाई। आप अपने डाई को सवाल पूछ रहे हो कि क्या ये होगा आगे चल के मेरी लाइफ में, एंड देन यू आर गोइंग टू बी रोलिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। और जब हम रोल करते हैं और सामने जो नंबर आता है, ऊपर जो नंबर आता है, जैसे हम डाइस खेलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। तो क्या हम साथ में मिलके शुरू करें ये जर्नी? सबसे पहले जानना जरूरी है कि सवाल कैसे पूछे जाए, सवाल कैसे पूछे जाए। सवाल आपके इतने सिंपल हो सकते हैं कि आज मुझे क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्या ये मेरे साथ होगा, क्या मैं ये करूंगी तो मेरे लिए फायदेमंद होगा, और कितने समय में ये काम होगा, है ना। ज्यादा तौर पर, आम तौर पर, there are three types of questions that we receive. First is yes and no. पहले होते हैं ऐसे सवाल that when we ask them, the answers can be in yes and no format. यहाँ पे एक सवाल आया है, पूछ रहे हैं कितने समय तक मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए? कम से कम 9 बार करो। उसके ऊपर इट इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता चलेगा व्हेन टू स्टॉप। यहाँ पे जब आप एक डाई को एनर्जाइज कर रहे हो, जब तक अंदर से पावर नहीं फील होता ना, आप करते रहोगे चैंटिंग।
ठीक है. So once you've energized your die, you're going to be asking questions. You're going to be asking questions. पहले टाइप का सवाल है yes and no. इसमें हम क्या अवॉइड करेंगे? इसमें हम किस तरीके के सवाल को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, नहीं पूछेंगे? सवाल नंबर 1, क्या मैं ये कर सकती हूँ? कैन आई डू इट? कैन आई डू इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. ये सवाल का मतलब होता है डू आई हैव द कैपेसिटी टू डू दिस? क्या मैं ये करने के लिए सक्षम हूँ, काबिल हूँ, एटसेट्रा. इस सवाल का मतलब ये नहीं होता कि क्या ये करने से मेरे लिए फायदा होगा कि नहीं. सो ऑलवेज आस्क शुड आई डू दिस. उससे भी बड़ा विल आई पूछो कि अगर मैंने करा तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. विल दिस बी beneficial for me if I do this? So learn to ask questions. आप में से कितनों को ये आदत है क्या मैं ये करूं के नहीं पूछने की? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या दैट इज ड्यूअल क्वेश्चंस इन वन. कभी अपने डाई को आप दो सवाल नहीं पूछोगे टू फाइंड वन आंसर. यू विल ऑलवेज आस्क वन आंसर. क्या ये करने से मुझे फायदा मिलेगा? दैट्स इट. आप अपने डाई को कंफ्यूज नहीं करोगे बाय आस्किंग टू क्वेश्चंस. वन क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन, दैट्स इट. शुड आई वाले सवाल पूछ सकते हो, विल आई वाले सवाल पूछ सकते हो. विल आई मीट माई स्कूल बडीज इन द कमिंग वीक? विल आई गेट टू ट्रैवल टू माई फेवरेट डेस्टिनेशन इन द नेक्स्ट 6 months? Will this partnership turn out to be fruitful for me? क्या ये पार्टनरशिप मेरे लिए फ्रूटफुल होगी? यस, नो, क्लियर. सो सबसे पहले जब आप यस एंड नो वाले सवाल पूछते हो, आपको अपना डाई एक सवाल के लिए बस एक ही बार रोल करना है. यस एंड नो एक ही बार तो आंसर आता है, राइट? तो कब आपका आंसर यस है, कब आपका आंसर नो है, ये फिगर आउट करना है. ये फिगर आउट करेंगे. all the odd numbers all the odd numbers mean a no, and all the even numbers mean a yes. 1, 3, 5. यानी odd numbers जब 1, 3, 5 आता है it means no. even numbers कौन से है? 2, 4, 6. जब 2, 4, 6 आता है it means a yes. तो जल्दी जल्दी उसके पहले के हम आगे बढ़े, अपने डाइस उठाएंगे. सब लोग, जितने लोग लेकर आए हैं, एक सवाल पहले सोच लो कि पूछना क्या चाहते हो. कि मेरी लाइफ में क्या ये होगा? क्या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 3 महीने में पिकअप करेगी? क्या मेरे बिजनेस में मैं ये करूं, एक्सेट्रा. जो भी आप पूछना चाहते हो वो सवाल क्लैरिटी के साथ सोचोगे, अपने डाई को हाथ में ले. और अब सिर्फ मुझे सुनते जाओ. एक गहरी सांस. क्लोज योर आईज. और अपने हथेलियों के बीच में इस डाई को एक्सपीरियंस करेंगे, थैंक यू कहेंगे. दोनों पैरों को जमीन पे रखेंगे और एक गहरी सांस लेकर कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे. और एक गहरी सांस, रिलैक्स. उच्चारण करेंगे क्रीम.
Cream. Cream. अपने मन में या तो विस्परिंग टोन में चैंट करेंगे। फिर अपने डाई को घुमाते घुमाते अपना सवाल पूछेंगे। रोल इट एंड फाइंड योर आंसर। जितने लोग आज गेमिंग बोर्ड से डाइस लेकर आए हैं, यू ट्राई टू, कोई टेंशन नहीं है। आज सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज नॉट योर फाइनल डाई। विथ सिंगल डाई, यस, विथ सिंगल डाई। वन डाई। गॉट नंबर 4। ओके, नोट डाउन योर नंबर्स जो आपको यस एंड नो मिले हैं। ओके, आप चाहो तो एक और सवाल पूछ सकते हो। और जब आप क्वेश्चन आपके पूछ के हो गए, तब डाई को कहोगे प्लीज रिलीज ऑल द एनर्जीज। माँ काली को कहोगे थैंक यू। एंड रिटर्न योर फुल अवेयरनेस हियर। रिटर्न योर फुल अवेयरनेस टू हियर। तो ये वाला जो आपने अभी ट्राई करा ना, वो सिर्फ यस एंड नो के आंसर्स हैं। सिर्फ यस एंड नो। अब इसमें आपको कोई गाइडेंस नहीं मिला, इसमें आपको कोई टाइमलाइन नहीं मिला। आपने अपने सवाल को इस तरीके से घुमाया कि आपको सारे आंसर्स यस एंड नो में मिले। अब देखो, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हम डिटेक्टिव बनते हैं। तो हम दुनिया जहाँ की रीडिंग सिर्फ यस एंड नो से कर सकते हैं, अगर हम क्वेश्चंस अच्छे से फॉर्म कर पाए। मानते हो ये? यस, ओके। अब दूसरा, लेकिन फिर भी हम और लर्न करेंगे। यहाँ पे क्यों अटकना? हम आज गाइडेंस रीडिंग भी सीखेंगे और हम आज टाइमलाइन रीडिंग भी सीखेंगे। Once came 3, 2 and 5. How can I see? मैडम, इसमें एक ही डाई को रोल करना है, पहली चीज। और एक ही बार रोल करना है। आपको यस एंड नो में आंसर चाहिए तो एक ही बार रोल करना है। जो पहली बार का रोल था वो आपका 1 था, तो 1 का आंसर। 5 था तो 5 का आंसर। 2 था तो 2 का आंसर। 1, 3, 5 ऑड नंबर्स है, यानी कि टू विल टेल मी ऑड नंबर्स यानी कि इट्स अ नो। करेक्ट। एंड 2, 4, 6 जब आपके आते हैं, इट मीन्स अ यस। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है इस पे? क्लियर? आई वांट क्विक थम्स अप साइंस ताकि मैं टाइमलाइन पे आगे बढ़ूं। ओके, ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे टाइमलाइन। थैंक यू सो मच। टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन यानी मैंने पूछा कि क्या मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को मिल पाऊंगी, और मुझे आया यस। उन्होंने बताया, डाइट ने बताया मेरे कि हाँ मैं मिल पाऊंगी। अब मुझे जानना है कि मैं कितने समय में मिल पाऊं। मैंने पूछा कि क्या ये पार्टनरशिप डील होगी, और मेरे को डाई ने बताया हाँ। तो अब मैं पूछ रही हूँ कितने समय में ये डील हो जाएगी।
क्या मैं अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए भेज सकती हूँ? यस। कितने समय में एडमिशन हो जाएगा? क्लियर। अब कितने समय में ये काम होगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस टू हैपन इज द सेकेंड क्वेश्चन. I want all of you to note this down. Note this down, and then I will give you a screenshot for you to remember. When you receive one, concept is the same. आपने सवाल पूछा और आपने डाई रोल करा. आपने सवाल पूछते समय डाई को घुमाया एंड देन आपने रोल करा, एंड जो नंबर आया उतने समय में काम होगा. उतने समय में काम होगा. Now let's look at when you receive number one. When you receive number one, ये काम आपका ऑलमोस्ट इमीडिएट होगा. विद इन डेज और विद इन वीक्स ये काम होगा. When you get number one, it is almost immediate. आप उसके रिजल्ट्स बहुत फटाफट देखोगे. बस कुछ दिनों में, बस कुछ हफ्तों में इसका आप रिजल्ट देखोगे. When you get number two, 2 weeks to 1 month, ये काम होते होते 2 हफ्ते से 1 महीने तक का समय लग सकता है. 2 weeks to 1 month. When you get number three, 3 months. 3 months. When you get number four, 4 to 6 months. 4 से 6 महीने. When you get number four. When you get number five, 6 months to 1 year. जब 5 नंबर आता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये अवधि, ये समय लग सकता है. And when you get number six, it is uncertain. ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अपना काम होगा. You need to trust the process. You need to trust the process. ऐसी कुछ चीज है जिसमें डिवाइन is playing a role. And that's why your timeline is not ready. This is going to be happening in its own space, in its own divine timing. Clear? Clear? मैं आप लोगों की टेस्ट लेने वाली हूँ. Clear? You want to check timeline of what is on your mind very quickly. आपके डाई के ऊपर चैंट करके आप एक चीज का टाइमलाइन पूछ के मुझे बताएं क्या टाइमलाइन आ रहा है. अब वापस क्यों चैंट करना था हमें? क्योंकि हमने हमारे डाई को कह दिया था सारी एनर्जीज निकाल दे, इसलिए. यू गॉट 4, यू गॉट 5, यू गॉट 4, यू गॉट 3. यस. ओके. 2, 1. ओके. 3. ओके. बहुत सारे लोगों को आज 3 मिल रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. साउंड्स अमेजिंग. ओके. नाउ. ओके. 1, 2, 3. 1, 3. ओके. थैंक यू. थैंक यू. राइट.
6 डिवाइन टाइमिंग में होगा। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि अब हम गाइडेंस कैसे रिसीव करें। हमें सबसे ज्यादा मजा रीडिंग में तब आता है जब हमें गाइडेंस मिलना होता है, जब हमें कोई चीज लाइफ में चेंज करनी होती है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, सबसे पहले नहीं, हम दो चीजें सीख चुके, अब हम सीखेंगे गाइडेंस रीडिंग। तो क्या गाइडेंस रीडिंग में भी हमें कोई ना कोई सवाल को ध्यान में रखना जरूरी है? हाँ, आप इस तरीके के सवाल पूछ सकते हो कि इस हफ्ते व्हाट शुड आई वर्क ऑन, ये रिलेशनशिप को क्या चीज की जरूरत है। ये ज्यादा इस तरीके का गाइडेंस है कि आने वाले समय में क्या आएगा मेरी लाइफ में, मुझे क्या छोड़ने की जरूरत है, मुझे क्या पाने की जरूरत है, कौन से एरिया पे मैं काम करूँ आज, क्या करने से मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे सवाल को कहेंगे गाइडेंस बेस्ड रीडिंग। तो वो भी क्या हम वन डाई से कर सकते हैं? जी हाँ, वन डाई से हमें मिलेंगे 6 तरीके के मैसेजेस, और वो 6 का एक्सपांशन आप देखना हर एक सवाल के साथ कितना बढ़िया होता है। We definitely get more expansion when we have 3 dice, when we have 5, 11 dice, but वन डाई की ब्यूटी आज आप देखोगे। तो अब आपको नोट डाउन करने हैं मीनिंग्स। जब आपको नंबर 1 रिसीव होता है, when you receive नंबर 1, इसका मतलब होता है you need to work on self. There are new beginnings coming in your life. You need to destruct your old patterns. When you receive नंबर 2, इसका मतलब है रिलेशनशिप पे काम करना है। अपने अंदर के लाइट और शैडो को बैलेंस करना है। इट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ, किसी तरीके की ड्युअलिटी हो रही है माइंड में अभी। When you receive नंबर 3, you need to focus on your career, on your work, on your studies, on your spiritual growth. When you receive नंबर 4, आपके लाइफ में अभी जो चैलेंज आके बैठा हुआ है ना, उसको ठीक करना है, अपने फियर्स को फेस करना है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है। इफ यू रिसीव नंबर 5, आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलने ही वाली है, बट एट द सेम टाइम अपने आप को लिबरेट कैसे करें, अपने आप को और ऊपर कैसे उठाएं, ये फोकस करना है व्हेन यू रिसीव नंबर 5। व्हेन यू रिसीव नंबर 6,
You need to work on your goals, जो भी goals हो। किसी का गोल होता है अगले 3 महीने में मैं खूब सारी स्टडी करूं, किसी का गोल होता है आई नीड टू शेड माई वेट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, किसी का गोल होता है आई नीड टू एम टूवर्ड्स receiving this promotion in my life, etc., etc. So you need to work on your goals and at the same time surrender yourself to the path. Surrender yourself to the path. As simple. अब यहाँ पे एक सवाल भी आया है कि when in timeline we receive 6, what's the solution? You need to start working on your karma and generate positive karma is the solution. Coming back to guidance, I want all of you to pick up your dice. सब लोग अपने अपने डाई उठाएंगे। सवाल अब मैं आपको दे रही हूँ। इज इट ओके मैं आपको सवाल दूं? यू विल चेक फॉर दैट, यू विल चेक ऑन दैट। अगर मैं आपसे कहूं कि आप चेक करो कि आने वाले 3 महीनों में आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, चांट ऑन योर डाई एंड चेक कि आने वाले 3 महीने में आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। आप लोगों के ईज के लिए आंसर्स में यहाँ ओपन करके रख रही हूँ। जिनको नोट डाउन करने हो यू कैन ऑल्सो नोट दीज डाउन। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आंसर्स आपके पास बने रहे। आने वाले समय में आपको कहाँ फोकस करना है। ओके, आई ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग आंसर्स। ओके, फिर से डाई उठाएंगे, एक और सवाल पूछेंगे। मुझे अपने लाइफ से क्या रिलीज कर देना चाहिए, मुझे अपने लाइफ से क्या रिलीज कर देना चाहिए। फाइंड योर आंसर्स, टाइप देम डाउन, नोट देम डाउन। और तीसरा सवाल आप पूछेंगे कि मुझे मेरी मनी एनर्जी के लिए, जिनको मनी के लिए पूछना है आप मनी एनर्जी के लिए पूछो, जिनको हेल्थ के लिए पूछना है आप हेल्थ के लिए पूछो, जिनको रिलेशनशिप के लिए पूछना है रिलेशनशिप के लिए पूछो। इसके लिए, ये एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस बनता है फॉर मी इन माई रिलेशनशिप, मुझे अभी क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रोल योर डाई, चेक योर आंसर्स। ओके, एवरी टाइम 4 ही आ रहा है। ओके, सो यू नो व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, स्टेबिलिटी जहाँ पे आपको वर्क करनी है। 4 टू रिलीज, 4 टू मीनिंग, मीनिंग मैंने आपको दिखा दिए। ओके, नाउ 5, 1, 2, 4, 6। ब्यूटिफुल। क्या है, सबको आसान लग रहा है? आसान लग रहा है?
वेरी इजी, वेरी सिंपल टू वर्क विद। डाइस डिविनेशन एक ऐसी ही प्रोसेस है। अब जब आपका डिविनेशन हो गया ना, दोनों डाई सॉरी, दोनों ने आपके डाई को हाथ में रखेंगे और कहेंगे कि आपके अंदर जितनी एनर्जी हमने डाली है क्वेश्चंस की, बाकी सारी वो रिलीज कर दो प्लीज। आज आपने वो डाई यूज करा है जो आपके गेमिंग बोर्ड पे था। अगली बार जब आप करेंगे और इसको अगर आप आगे ले जाना चाहते हो, तो आप एक बस छोटे से डाई में ही इन्वेस्ट करेंगे और ये प्रैक्टिस आप शुरू करें। ये प्रैक्टिस आप शुरू करें। जितनी सिंसियरिटी से करेंगे और जितने रिपीटेशन के साथ करेंगे, यानी रोज सुबह उठ के आपको ये गाइडेंस लेना है कि आज मैं अपने लाइफ के कौन से एरिया पे मैं वर्क करूं, इस हफ्ते में कौन से एरिया पे वर्क करूं। जितना रिपीट करेंगे उतनी प्रैक्टिस मजबूत होंगी, उतने आंसर्स एक्यूरेट होंगे। इसके अलावा एक जर्नल बनाओ, जर्नल पे नोट डाउन करो कि कौन से दिन क्या आंसर आपको मिला था। ये करने से यू विल बी एबल टू कम बैक एंड सी के कितने आंसर्स आपके राइट और रॉन्ग हुए, एंड यू विल रियलाइज कि वाओ कितना एक्यूरेटली हम रीड कर पा रहे हैं, कितना एक्यूरेटली हम रीड कर पा रहे हैं। वन लास्ट टाइम आई एम शेयरिंग द स्लाइड। Sorry, I have shared a wrong slide here. Let me move to, आई थिंक मैं एक स्लाइड, हाँ एक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थी। ये है स्लाइड फॉर द लास्ट टाइम। क्विकली ग्रैब अ स्क्रीनशॉट। ना इसके लिए किस तरीके के डाइस चाहिए? कोई भी डाइस चलेंगे, ग्लास के हो, क्रिस्टल के हो, प्लास्टिक के हो, रेजिन के हो, मेटल के हो, बट आपको 6 साइडेड चाहिए। 6 साइडेड डाइस चाहिए for you to be able to do this effectively, accurately. Now, आप में से जितने लोगों को ये काम बड़ा ही आसान लगा और लगा इससे कुछ सीख सकते हैं, इससे ना हम आगे ले जा सकते हैं, in that case I would want to introduce you to my Kali Dice Divination Workshop। ये जितनी फन थी ना कि हम करते ही चले गए। मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट बता दिया और आप सीख गए। डिवाइन गाइडेंस मीन्स 6 months और मोर। सॉरी, आपका सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। I'll be taking your questions. Give me 10 minutes, but let me introduce you to my workshop and then I'll be taking all your questions. Yeah. तो जितनी आसानी से आपने अभी करा ना, I just told you, you started working with it. I just told you, you started working with it. इतना सिंपल और आसान काम है काली डाइस डिविनेशन करना, जिसमें हम सिर्फ एक नहीं, हम एक डाई की रीडिंग करते हैं, हम 2 डाइस की करते हैं, सॉरी 2 नहीं 3 की करते हैं, 5 की करते हैं और 11 की करते हैं। तो आप जब भी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो ना खुद के लिए, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उसके सॉल्यूशंस भी सीख सकते हो। ये ऐसी वर्कशॉप है जो आपको काली डाइस डिविनेशन प्रैक्टिशनर बनाने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए रेडी है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी और जब तक आपको समझ में नहीं आए कुछ, ये वर्कशॉप खत्म भी नहीं होगी।
तो यहाँ फिर से कह रही हूँ, हम 1 डाई, 3 डाई, 11 डाइज यानी कार्मिक स्प्रेड सीखेंगे प्रॉपर। ऐसे ऐसे इंसाइट मिलेंगे। 3 डाइज में भी ऐसे ऐसे इंसाइट मिलते हैं और एक ओवरव्यू मिलता है विद 5 डाइज। तो 5 डाइज भी हम सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे माँ काली से कैसे कनेक्ट करें और हमारे डाइस डिविनेशन से आंसर्स लेकर आए। बहुत सारे लोग हैं जो टैरो करते हैं, अब डाइस पे स्विच हो गए, टैरो के साथ डाइस करते हैं। उनका कहना है कि इससे जो टाइमलाइन और बाकी चीजों की एक्यूरेसी मिलती है ना, वैसी एक्यूरेसी कहीं देखी नहीं उन्होंने। तो ये आपको रेडी पीडीएफ मैनुअल, एक्सपीरियंस, बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ आ रही है ये वर्कशॉप, जो आपको हैंड्स ऑन कराएगी। इसके साथ आपको क्या मिलेगा? इसके साथ आपको 3 मंथ्स एक्सेस मिलेगा टू द रिप्लेस। अगले 6 महीने तक ये वर्कशॉप जितनी बार रिपीट होगी, हम आपको बुलाते रहेंगे, आओ रिपीट करो, आओ रिपीट करो। प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, कंटिन्यूस सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, और इन सबका टोटल ही ₹27,300 होता है। लेकिन आज मैं बोनसेस दे रही हूँ कुछ ऐसे जो यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, बताती हूँ। पहले देख लो कि ये वर्कशॉप शुरू कब हो रही है। ये जो स्केड्यूल है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू बी टेकिंग दिस वर्कशॉप। इस 5 दिन की वर्कशॉप में हम मीनिंग सीखेंगे, हम हैंड्स ऑन हो जाएंगे विद द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे। और इस वर्कशॉप का इन्वेस्टमेंट है ₹5,999 या $79। बट आज के दिन के लिए पहले 10 एक्शन टेकर्स को आई एम गिविंग आउट ₹3,500 यानी $46 में ये वर्कशॉप। इट इज कमिंग टू यू अंडर वेरी ब्यूटिफुल ऑफर। 5 दिन जर्नी शुरू। 5 दिन में मैं आपको इतना हैंड्स ऑन कर दूंगी इस चीज से कि यू कैन बिगिन रीडिंग विद योर डाइस। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होंगे 11 डाइस, बिल्कुल ऐसे, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी जितनी भी चीज होगी, आपका एक घर पे रुमाल एक्सेट्रा, वही चीज। और इस वर्कशॉप में साइन अप करने के लिए आपको जो लिंक्स चाहिए वो आपको यहाँ पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जा रहे हैं। यू कैन गो अहेड एंड साइन अप। I will soon be taking your questions, and I'll be answering your questions. So feel free to ask me anything regarding आज जो आपने सीखा regarding signing up. And I'm more than happy. Meenakshi ji, you want to place your question here? वन लॉन्ग मंत्र आप उस फेस की एनर्जी को क्लियर करने के लिए यूज करोगे। You're welcome. जितने लोगों ने आज कुछ सीखा, जितने लोगों को लगता है कि आज हम कुछ लेकर जा रहे हैं, उन सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें गूगल रिव्यू दे, एंड इन रिटर्न एक्सेप्ट अ वर्कशॉप फ्रॉम मी, वर्कशॉप फ्रॉम ऑल ऑफ अस। दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम एस्ट्रो अलाइन टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अस हैप्पी रिव्यूज। अब मेरे क्वेश्चंस, आज के बोनस जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब सबके लिए मेरे पास बोनसेस हैं। सबसे पहले मैं जो सवाल पूछ रही हूँ
उनके आपको जवाब देने हैं, ठीक है? मैं कोई भी सवाल पूछूंगी और ध्यान रखना कि मैं यस एंड नो के बारे में पूछ रही हूँ, मैं टाइमलाइन पे पूछ रही हूँ, या मैं गाइडेंस पे पूछ रही हूँ। आपको उसका जवाब टाइप करना है। जो हमें सबसे पहले मिलेगा, वी आर गोइंग टू बी गिविंग देम वन ऑफ आवर फ्री वर्कशॉप्स, और मैं अनाउंस करते चलूंगी किसको क्या मिल रहा है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बी गिविंग आवर 3 पावरफुल अग्रेसिव हर्ब्स वर्कशॉप। इसमें जो 3 हर्ब्स है ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देते, वैसे रेमेडीज मैंने शेयर करे हैं कार्डमम सैफरन वर्कशॉप में। वेलकम इन चिया सिंह जी, वेलकम इन। तो माय क्वेश्चन इज, जब आपके रीडिंग में 5 आता है टाइमलाइन में, तो वो क्या मतलब होता है उसका? व्हेन योर टाइमलाइन नंबर इज 5, व्हाट काइंड ऑफ टाइमलाइन इज इट शोइंग? द राइट आंसर इज 6 months to 1 year, नॉट 6 to 1 year। तो जिन्होंने सबसे पहले लिखा है 6 months to 1 year, रुद्धि जी, प्लीज accept one of our, not one of our workshops, accept our saffron and cardamom workshop. Thank you so much for participating. Thank you. अब एक और पर्सन को हम ये वर्कशॉप देंगे। हाउ अबाउट मैं एक के बदले 3 लोगों को कुछ दूं। मैं दूंगी हमारा ओजार्क नॉलेज कॉल, जो कि पेड था, बट आई वांट 3 people टू बी बेनिफिटेड। एंड माय क्वेश्चन इज, जब मेरे रीडिंग में आई रिसीव नंबर 4, जब मेरे रीडिंग में आई रिसीव नंबर 4, डज इट मीन अ yes और अ no? Thank you so much. The first 3 people, team, please note down. Let us give the first 3 people our Ozark knowledge call. For the same Ozark knowledge call, I'm giving you one more question. One more question. When I've received number 2, उसका guidance meaning क्या है? Number 2 का guidance meaning क्या है? What do I need to work on? Aditi ji, your answer is detailed, so please accept it from us. Thank you so much for participating. जितने भी winners हैं, प्लीज प्लीज अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए कि आई वन अ गिफ्ट। प्लीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ मत लिखिएगा, ताकि हमारे टीम मेंबर्स आपको आइडेंटिफाई कर पाए। हमारे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लीज अवेल द गिफ्ट। हाउएवर टीम, वी विल हैव टू सिलेक्ट वन पर्सन, 3 people from number 2 and 3 people from second and third questions. So I chose one already. इसके अलावा जिन्होंने भी डिटेल में आंसर दिए हैं, so that is for question 3 Aditi ji, for question 3 Sumita ji, for question 3 hmm, Malini ji, who was first to answer. So please accept our gifts and make the most of the workshops. Thank you for participating. किसी के और भी क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। ओके, Namaste, madam. नमस्ते। How many questions we can ask?
for die at a As time. many, As as many, as many. thank you, You madam. will just go on. Yeah, Okay. Thank you. you're welcome. सुमिता जी, नमस्ते मैम। नमस्ते ग्रैटिट्यूड मैम। टू यू टू। मैम, जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था, कि अ, हम मतलब डाइट से पूछना है कि हमें अपने अंदर से क्या रिलीज करने की जरूरत है। मैम, वहाँ पर मेरा आंसर नंबर 3 आया था, एंड दैट इज ट्रांसमिशन एंड स्पिरिचुअल, ऐसा कुछ था मैम, समझ नहीं आया बताओ क्या मुझे। था? ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर। तो करियर और ट्रांसफॉर्म होने के लिए जहां जहां आप अटका हुआ फील करते हो, करियर में आगे बढ़ने के लिए जहां जहां आपने खुद को अटकाया है, वो सारी चीजों के हर एक नेगेटिव पहलू पे वर्क करके रिलीज करना है। सो दिस इज टाइम फॉर यू टू बी फोकसिंग ऑन योर करियर। उदय जी, वो मैंने पूछा था 6 मतलब आया एक इसमें मेरा जॉब का, तो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो डिवाइन गाइडेंस इसका मतलब टाइम कुछ रहता है कि when the timeline is divine timeline, it's uncertain. Divine is working behind this. There is no specific timeline right now given to you. okay, Yeah. so it was, it's only blessings are there, that much only. So जो भी करिए, start working with good karma. It will work out in, तो ये सवाल को ना आप दोबारा पूछ सकते हो 1 महीने के बाद। Okay. अगर तब तक डिवाइन ने वर्क कर लिया है, आपको जवाब आ जाएगा। अदरवाइज इफ डिवाइन इज स्टिल वर्किंग, आपको दोबारा 6 आएगा। सो मोस्ट लाइकली थोड़े समय में आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कितने समय में ये होगा। सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन अगेन लेटर। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। अदिति जी, आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। माय टीम हैज गिवन द नंबर्स हियर इन द चैट विंडो, सो यू कैन रीच आउट टू द टीम फॉर साइनिंग अप फॉर दिस क्लास। द क्लास इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, लाइक जैसे ये है जो आप अभी अभी अटेंड कर रहे हो, बिल्कुल उस तरीके का क्लास होगा। राइट नाउ स्ट्रेट अप ₹3,500 में है। एंड द लास्ट बोनस दैट आई एम ऑफरिंग ऑल ऑफ यू, जितने लोग साइन अप कर रहे हैं आज के दिन, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन, उनको वी विल गिफ्ट आवर अग्रेसिव हर्ब्स वर्कशॉप, विच इज सैफरन कार्डेमम रेमेडीज वर्कशॉप। तो यहाँ पे हमारे टीम के नंबर्स लिंक टू रजिस्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं। राइट, सो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई जितना भी आज आपने सीखा है। इजी पीजी वर्कशॉप है, इसमें कोई भी जात के किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। गो अहेड, प्रैक्टिस, ट्राई एंड लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप के कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई दिस आउट? हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई दिस आउट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जितने लोग हमारे, ओके, व्हाट इज दिस? हाँ, दिस इज अबाउट द गूगल रिव्यू। जितने लोग आज के वर्कशॉप से खुश हैं, लग रहा है कुछ नया सीख कर जा रहे हैं, प्लीज गूगल रिव्यूज डेफिनेटली दीजिएगा। अगेंस्ट द गूगल रिव्यूज वी आर गिफ्टिंग वन ऑफ आर इनर गॉडेस वर्कशॉप। ये वो वर्कशॉप है जहां आप डीप इनर वर्क करते हो, रिफ्लेक्शन मोड में जाते हो, एंड यू अवेकन द गॉडेसेस विद इन योर सेल्फ। So if you want to be a part of Inner Goddess workshop, please send us Google reviews and we will gift that to you. With this, taking everyone's leave and praying that all of you will practice and get the maximum out of this call today. Taking your leave, thanking you. Thank you so much. Thank you.